Where art thou, Romeo? आज हम बात करेंगे लव स्टोरीज पे। अरे कचरा क्यों फेंक रहे हैं भाई? मेरा कचरा, मेरा घर, मेरी मर्जी। लेकिन सड़क तो आपकी नहीं है ना? अरे जाओ जाओ। आज हम बात करेंगे हेट स्टोरीज पे। हद होती है यार। Hi guys, welcome to yet another episode of After Hours with me, your host उष्णा शाह। हम इस शो पे बहुत मज़े की बातें करते हैं, स्किट्स करते हैं, गेम्स खेलते हैं, ज़रा ऑफ टॉपिक बातें भी करते हैं with our amazing lineup of guests। वैसे एक बात करनी थी आपसे। ये बात सबको पता है कि लेजीनेस में कचरे को सही जगह ना फेंकना एक बड़ी गंदी बात है और इस बात के काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लेकिन आपको पता है रिसर्च बताती है कि कचरा गलत जगह पर फेंकना सिर्फ पेस्ट, बीमारी, गंदगी नहीं फैलाता, बल्कि जिन इलाकों में कचरा हर जगह होता है उन इलाकों में क्राइम्स भी ज़्यादा होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कचरा देखने वाला कोई नहीं है तो क्राइम देखने वाला भी कोई नहीं होगा। खैर, this brings me to our next guest. He's very special indeed. He's been the quintessential boy next door, the green-eyed boy next door, might I add, for almost 2 decades. He started his career in film, moved on to television, and he's done some fantastic roles. He's special because not only has he played some incredible positive roles, but he's done a couple of negative ones that are quite daring, I must say. He's an actor, he's a father, he's an ambassador to some incredible causes, and he's made some great changes in the country. Please, my invisible audience, help me welcome the one and only Ehsan Khan. Hi. Hello. Welcome to the show. How are you? Good to see you. Welcome, welcome. So good to happy have for you. I love the set. You like it? You're looking amazing. Oh, thank as you so always. much. As are you, and we're twinning. Thank you. Yes, of course. We're twinning. Please have a seat. Thank you. Thank you. So good to see you, Ushna. So good to see you. I mean, it's amazing. You're an amazing actor. Thank we all you. know that. पूरा Thank पाकिस्तान जानता है. But as a host, brilliant, yaar. I'm so impressed. Thank you so much. Thank you. Coming from you. And I've been on 2 of your shows. I know. And we've acted together. And you're amazing, of course, Ehsan Khan. बहुत अच्छा play था यार हमारा. हमारा मजे का play था. It was very nice. And we're twinning. Black, yeah. I love somehow. it. I love it. Somehow. You're looking so amazing. You're looking gorgeous. I'm gonna ask you. Thank you. I love getting compliments. Ehsan, I need to firstly find out about your childhood. I know you've told so many people already. You've been in a million interviews, but you haven't been on my interview. So please tell me about your early life, your childhood, your upbringing. Where did you grow up? Okay, so वैसे तो बहुत से shows में मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन everyone knows पैदाइश UK की, born there, and वहीं पे schooling जो पहला मेरा school है वो भी वहाँ पे है, लेकिन 11 या 12 साल की एज में around this time the family shifted back to Pakistan. Okay. लाहौर में. Okay. लेकिन उसके बाद वो परमानेंट नहीं वहाँ पे रुके, फिर आना जाना भी रहा, बिकॉज उधर भी एक बेस था, इधर यहाँ पे स्कूलिंग हुई, फिर कॉलेज यहाँ पे हुआ, और इसी तरह बस गुजरा है बहुत बचपन जो है वो ट्रैवलिंग। हाँ, क्योंकि आप अक्सर बाहर से जो लोग आते हैं ना वो यहाँ सेटल मुश्किल से होते हैं, लेकिन जो चले जाते हैं वो अपने मुल्क को बहुत याद करते हैं। सो आई थिंक माई पेरेंट्स वर ऑलवेज शफलिंग, यू नो, और हम भी साथ शफल करते रहे, विच इज डिफिकल्ट बिकॉज स्कूल्स बदलना और चीजें करना थोड़ा एक कल्चर शॉक भी होता है, कल्चर शॉक भी होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल इट वाज फन बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हर तरह की चीज से एक्सपोज होते हैं वो बड़ा उनका डिफरेंट माइंडसेट हो जाता है। सो लाइक आप गांव, मैं देहात से बहुत एक्सपोज हूँ बिकॉज मेरे फादर साइड ऑफ द फैमिली जो है उनका एक गांव है और वहाँ ज़मीनें हैं, तो वहाँ पे आना जाना, फिर लाहौर शहर में रहना, कराची शहर में रहना, फिर लंदन में बहुत टाइम गुजारना, तो ये सारा एक्सपोजर जो है उसने मुझे मेरे करियर में बहुत हेल्प किया है कि मैं बहुत डाइवर्स रोल्स जो प्ले कर लेता हूँ। तो आई लेटर ऑन डिस्कवर्ड कि ये मैं किस तरह से, क्योंकि अगर आप एक ही तरह के ज़िंदगी से एक्सपोज हुए हैं तो आपको दूसरों की ज़िंदगी जानने में बहुत मुश्किल होता है, बट व्हेन यू आर एक्सपोज टू सो मच, सो देन इट्स इजी टू ग्रैब एंड कैप्चर स्टफ एंड ऑब्जर्व। इट्स अ सुपर पावर। इट्स अ सुपर पावर। सो आप चाहे देसी आदमी का रोल हो, लाहौर के अंदरून शहर का रोल हो, कराची
का रोल हो, किसी पढ़े लिखे आदमी का रोल हो, किसी बाहर से आए हुए लड़के का रोल हो, किसी तो वो सारे, और बड़ा मजा आता है फिर करने में। तो वो मुझे ये बड़ा मेरा एक, मुझे लगता है बड़ा भरा हुआ कलरफुल सा एक बचपन गुजरा है सारा। And it's formed you into such an amazing actor. It helps, right? That's amazing. मुझे बताएं कि growing up, क्योंकि आप यहाँ भी रहे वहाँ भी रहे, कौन सी मूवीज और टीवी और इस तरह की चीजें आप ज्यादा देखते थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? अच्छा, my parents वो बहुत film oriented people. Were they in film? Were they in entertainment industry? No, not at all. But they used to watch a lot of films. And मैंने पहले भी बताया ये काफ़ी जगहों पे कि I've grown up going to cinema with them. पाकिस्तान में यूके बहुत सिनेमा देखते थे, पाकिस्तानी सारा सिनेमा मैंने देखा है, सब सिनेमा, और प्लाजा सिनेमा, कपरी सिनेमा, I've been to all the cinemas regularly। और बचपन से लेके कोई नई इंग्लिश फिल्म लगी है उस पे जाना है, कोई नई पाकिस्तानी फिल्म लगी उस पे जाना है, यूके में जब होता था तो वहाँ इंडियन फिल्में बहुत लगती थी, उस पे जाना है, तो हर तरह का। देन मुझे लगता है कि माय फादर्स ऑफ द फैमिली वो बहुत म्यूजिक ओरिएंटेड भी है। मतलब मैंने अपने घर में बचपन में लंदन के घर में नुसरत फतेह खान साहब की परफॉर्मेंस देखी हुई है। And before I was born, before I was born, my mother, if you ask them, they say कि मैडम नूर जहां हमारे घर में ठहरी थी तकरीबन 2 महीने लंदन में। And then when I was, my father had a restaurant in Lahore for a while, so वो restaurant was like very popular। बाबरा जो हैं and मोहम्मद अली and ज़ेबा साहिबा and सारे जो फिल्म एक्टर्स थे उस रेस्टोरेंट में बहुत आते थे, और ये मैंने सुनी भी ज़्यादा स्टोरीज। एंड देन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो मैंने इनको अपने घरों में भी देखा। सो वो सबको देख के, और घर में एक माहौल था, तो मुझे लगता है कि उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि आई ऑल्सो वांट टू जॉइन दिस फील्ड। You always knew कि I will be an actor? I don't know, always I wanted to become an actor. Awesome. So मुझे बताएं, you've been in this industry for, you started very young. You were a teenager जब आपने शुरू किया। उष्णा, actually You were a baby. मेरा जो पहला एक शॉट था ना, जो पहला एक सीन मैंने किया था एक प्ले में, I think I was 12 or 13. Oh my God. वो यहाँ 14 साल का कुछ ऐसा एज थी। वो भी एक सीन था, एक शॉट था, और वो पीटीवी में, क्योंकि मैं पीटीवी में बहुत जाने का शौक था, शूटिंग्स देखने का हमेशा से बचपन से शौक था। तो वन ऑफ लाहौर पीटीवी, स्टूडियो A and B, मेरा तो बचपन में गुजरा है, ठंडा ऑफ कोर्स। सो उधर मैंने किसी को बहुत फोर्स करके, फैसिनेट करती थी ये चीज़ मुझे, एक्टिंग और एक्टर्स और सेट्स एंड लाइट्स, दे यूज्ड टू फैसिनेट मी एज अ चाइल्ड। सो आई वांटेड टू ऑलवेज बी देयर एंड वॉच स्टफ। सो मैंने कोई पीटीवी में जाती थी, एक खातून थी, तो उनको मैंने हमारे रिलेटिव्स ही समझ लें आप हैं, तो मैंने उनको बहुत उनकी मिन्नतें की कि आई वांट टू गो विद यू वन डे, आई वांट टू गो। शी टुक मी एंड देन आई वेंट टू द सेट एंड आई सॉ पीपल एक्टिंग एंड आई वेंट टू डायरेक्टर्स के दफ्तर में, खोल के चला गया दरवाजे, और वो बच्चे को डांट वांट तो नहीं पड़ी, लेकिन मुझे याद है वहाँ पे एक प्ले बना था जो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, कश्मीरी बच्चे बना के, और सबा हमीद उस प्ले में थी। एंड सबा हमीद वाज ऑन द व्हील चेयर। इफ आई मीट हर सबा आपा एंड आई आस्क कि वो कौन सा प्ले था मुझे बताएं। सो मैंने सबको, उनको बहुत सारे बच्चे चाहिए थे, उन्होंने मुझे भी बिठा दिया और उन्होंने एक लाइन दे दी मुझे। सो आई स्टिल रिमेंबर कि वो एक लाइन मैंने बोली बहुत सारे बच्चों में, तो मुझे डायरेक्टर की आवाज़ आती थी ना, आप यू नो डायरेक्टर सामने नहीं होते थे, वो अपने रूम्स में बैठे होते, एडिट कर रहे होते थे उसी वक्त ऑन द स्पॉट। सो वो उन्होंने बोला कि अरे ये बच्चा तो बहुत अच्छा है। सो वो उस चीज़ ने मुझे और सोचा कि यार कितने लोगों में ये कर लिया, एंड आई वाज गुड एट इट एंड आई कैन डू इट। सो दैट्स हाउ गॉट, देन आई केप्ट गोइंग एंड लॉट ऑफ पीपल थॉट कि आई एम इन दैट एज जो ना बच्चे का रोल कर सकते हैं, ना ग्रोन अप का रोल अभी कर सकते हैं। सैयद नूर साहब ने मुझे बोला आप 2 साल बाद आओ, अभी आप बच्चे हो। हालांकि मैं तब 17 साल का था जब उनके पास गया ऑडिशन देने। फिर शहजाद रफ़ीक साहब के पास गया मिलने के लिए कि मुझे फिल्म में काम दें। संगीता साहिबा के पास गया। टीवी पे अयूब खावर साहब का एक प्ले का ऑडिशन दिया, तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी नहीं, उन्होंने कहा नहीं अभी तुम्हें सीखना है, अभी पढ़ना है। And you also have a baby face अभी तक बहुत ही छोटे लगते काम आता है ना, वो एज कम लगती है, काम आता है, एज कम लगती है। सो इसलिए वो इस तरह ही शुरू हुआ। एंड मुझे कभी कभी ये भी होता कि यार इतना शौक क्यों था,
लेकिन वो चीजें नहीं, if you're destined for it, you're destined for it. Some people are born to do this. But I'm very happy. I love my work. I mean, I enjoy my work. मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत से लोगों को क्रिप करते हुए देखता हूँ जिंदगी में. ते कंटेंट नहीं है, खुश नहीं है. वो इसलिए कि वो जो वो उनको करना चाहिए जिंदगी में वो नहीं कर रहे. People are not happy because they haven't उन्होंने pursue नहीं किया जो. You're doing what you love. They say when you do what you love, you don't work a day. So, exactly. And you're always so happy on set. You're always so excited. Chilling out. It's like chilling out, man. So has because you started when you were so young. Yeah. आपने एक पूरा era बदलते हुए देखा है industry का. आप उस chapter के opening closing पे थे. Don't you feel nostalgic? वो जो 2000s का एक era था. I like the present time. You prefer this? I like it. You like it more. Every time. जब आप मुझे किसी में अगर 10 साल पहले भी चल रहे हो. There's more money now. That's for sure. हाँ. Is that what you like? हाँ. There's satisfy कर देता है पैसा थोड़ा सा आपको. लेकिन अगर as an actor बात करें तो मुझे अच्छा लगता है. मुझे अपना ये time और age भी पसंद है. मुझे इससे पहले भी. In fact मुझे ये कुछ सालों से ज़्यादा इसलिए अच्छा लग रहा है कि 2017-16 से जब मैंने थोड़े से नेगेटिव कैरेक्टर्स और डाइवर्स कैरेक्टर्स प्ले ज़्यादा करना शुरू किए तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास ज़्यादा मैं अपने आप को एज एन एक्टर प्रूव करने का मौका मिला जो कि पिछले 10-12 साल में शायद नहीं मिला था. You're always the chocolate boy hero, run of the mill, typical hero. And you've done such a good job playing these new sort of characters also. Every time I want to. You played a pedophile in a drama. Yeah. You. Yeah, imagine me being that. But you did such a good job. And people were like hating you. This man that they've loved, जिस पे औरतें मरी थी इतने सालों से, and suddenly he's this. He's this for thing. like this one drama. मैं उसका क्रेडिट मैं honestly सारा मैं नहीं लेना चाहूँगा बिल्कुल भी 1% में भी नहीं because एहतशाम भाई and मोमिना गुरैद and मैं उनको क्रेडिट दूंगा इस चीज़ का because उन्होंने I don't know उन्होंने क्यों करवाया मुझसे. मैं तो नहीं कर रहा था यार, उन्होंने करवाया. और जब भी इस फील्ड में मैंने कुछ नया डिस्कवर अपने लिए किया तो किसी ने करवाया तो मुझे लगा कि किसी ने आपको नज किया कि आप ये भी कर सकते हैं. होस्टिंग भी जो मैं करता हूँ मुझे तो नहीं मालूम था कि मैं होस्टिंग. And you're such a good host. I don't know. I don't know why I'm a good host. A lot of people say that, but you are. But somebody saw that and they made me do it. The producers and the directors also वो कहते हैं ना have this eye कि वो देखते हैं कि कौन एक्टर्स क्या कर सकते हैं तो वो कभी-कभी बहुत अच्छी चीज करते हैं. Because they see it when कभी-कभी ये भी होता है कि they don't see you beyond what you've done. A lot of people don't. Which is unfortunate. Which is unfair. But for somebody they do. That an actor has to also work hard for that because मेरे पास जब बहुत से स्क्रिप्ट्स आते हैं उतना तो मैं रिफ्यूज बहुत करता हूँ, बहुत मना करता हूँ, बहुत देर काम नहीं करूँगा और मैं ये बोलता हूँ उनको फोन पे मिलते हुए कि यार कुछ अलग कराएं मुझसे. So you say it. So I say. So ये एक्टर्स की एक It's your choice आपने कहाँ जाना है. तो ये अच्छी बात है कि वो सुनते भी हैं. सुनते हैं. We did a very fun project together. Oh yes, that was. अच्छा वो भी मुझे. और मैं उसमें इतनी मोटी थी. I was COVID के दिनों में and I just ballooned. अच्छा उसमें वो भी no you were perfectly fine. उसमें भी मुझे अपने आप को ना मैंने बहुत 2-3 नेगेटिव इकट्ठे कर लिए और मैंने सोचा यार इतने दिन हो गए वो जो टिपिकल लव स्टोरी थी वो तो की नहीं. फिर अली फैजान का ये सेवन स्काई का ये प्ले आया and I was like oh it's a typical romantic लड़कियों को फूल दे लड़की के पीछे भाग रहा है. You were so mean to me in it. For a while. You were married to me. Yeah, and but you for were a in while. love with your. But I came back to you because I was in love. They always come back. That's the thing with Pakistani dramas. They always come. That's the thing with men. They always come back. So now that we're talking about your projects and your friendships in the industry, is there a project जो पिछले 10 साल का चलो जो आपके दिल के बड़े करीब हो and you wanna, want people to watch it? हमेशा एक प्रोजेक्ट का नाम जरूर आता है उडारी का. वो एक मेरी शनाख्त बन गया है. लेकिन उसके अलावा मैंने उसके बाद जितने प्रोजेक्ट्स किए मुझे लगता है वो सोच समझ के किए. उससे पहले शायद कुछ प्रोजेक्ट्स इनफैक्ट मुझे अपना दास्तान बहुत पसंद है. एक प्रोजेक्ट मुझे अपने तमाम प्रोजेक्ट्स दास्तान इज द प्री-पार्टीशन का जो एक था जिसमें फवाद खान भी था. फवाद एंड सबा थी मेरे साथ एंड सना. अच्छा I'm going to come back to this Sabaa Qamar pairing because I love that pairing, but before we do we're going to take a short break. Come right back on After Hours with Ushna Shah. We're chatting with Ehsan Khan. Welcome back, guys, to After Hours with me, Ushna Shah. We're having Gupshup with Ehsan Khan. Ehsan, tell me, you've collaborated with Sabaa Qamar quite a bit, a few times. What is that dynamic like? Because she's also a great actor. And
Does it help जब आप एक एक्टर के साथ बार-बार काम करते हैं और उनकी केमिस्ट्री एक अच्छी बन जाती है? Probably it does, but generally मैंने अगर किसी नए लोगों के साथ भी काम किया and if they're good actors, तो वो action reaction है acting, everyone knows that. So Sabaa is a wonderful actor. Yes. I mean पाकिस्तान के अगर हम top actor, female actors की बात करें उसमें Sabaa सरे फहरिस्त, she's very good. So वो इतना अच्छा reaction या action उसका होता है कि automatically you know you're a wonderful actor as well, so you also know this, no, you know this कि जब दूसरा एक्टर आपके सामने कोई बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा होता है ना, तो आपके अंदर एक खुद से acting is reacting, एक अंदर से कोई चीज आती है। Absolutely. तो बहुत सी लड़कियों के साथ बहुत पेयर्स में ऐसा वो जो आपको एक स्पार्क स्क्रीन पे जो लोगों का नजर आता है वो उनकी केमिस्ट्री होती है। Yeah. So I mean I feel great when somebody says कि मेरा सबा के साथ पेयर या किसी के साथ, because she's wonderful and I always, every time when I'm offered a project with her, when we're doing something together, I get very excited because I know that something good is going to happen. Something good's going to come out of this, like that Shah Rukh Kajal dynamic, because something good is going to come out of it. I think they're too big, but Sabaa is very big. But मैं अपने लिए I'm just a you've also done very well. I just try my best. You have to be. Oh, that reminds me. Should I tell the story? Living on the moon. बताओ ना बताओ यार। So अभी मैं कनाडा से आई थी और मेरा एक्सेंट भी उस जमाने में नया फ्रेश था and I was like fully like oh my god I'm so like cool and जो भी and I was brand new in the industry. तब ये थी I live here and there. मैं थी live here and there actually, और लोगों को नहीं पता कि जो लोग आधे रहे होते हैं सारी जिंदगी बचपन से, उनका एक्सेंट ऑटोमेटिकली स्विच करता है। ये एक बहुत नॉर्मल फिनोमेना है, but anyway. So I was here and someone introduced us और I didn't know you then, I didn't know anybody. You didn't know anybody on the set? I didn't know anyone. So someone introduced us. I said ke I'm so sorry, hi, I'm Ushna, nice to meet you, and they said this is the Ehsan Khan and you know Ehsan. And I said no, I'm sorry, I don't, but and he goes, but were you living on the moon? Yeah. अभी मैं ये सोचता हूँ कि मैंने ये बोला, देखो लोग ग्रो अप करते हैं ना, मैं सोचूं कि अभी ये लाइन में किसी को कभी नहीं बोल सकता। Of course, मैंने भी बहुत क्रिंज बातें जिंदगी में बोली हुई है कि I die, but मुझे ऐसा लगा realistically speaking कि अगर मैं considering एक पाकिस्तानी घर में पली बड़ी और usually पाकिस्तानी घरों में केबल लगती है। And look, your mother यार। I haven't seen any of her dramas. Imagine. Can you imagine? She's such a big actor. She's an amazing person. I haven't seen my sister's dramas. मुझे बाद में पता चला कि ये अलग है। ये नहीं, मुझे पता चला कि ये उनकी बेटी इरसा की बहन, फैमिली पूरी ये कनाडा से आई और कह रही है हाँ ये कौन है ये लोग, यार ये क्या समझ रहे अपने आप को, इसलिए मैंने चांद से आई हो यार। एंड वो आपका बनता था कहना एंड इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग कि मैं एक इंडस्ट्री में आई हूँ और मुझे उसमें किसी का नहीं पता। मैं तो उर्दू पढ़नी नहीं मुझे उस वक्त आती थी, मतलब मेरा बहुत अब आती है, और जो यहाँ पे पले बड़े लोग हैं उनको नहीं आती। हाँ वैसे ये कमाल बात है, but you worked निकाल नहीं यार निकाल आती है यार उसको, बड़ा अच्छा बोलता है यार। No, he reads Roman. He does. A lot of actors do. A lot of actors But I think वो उसमें शायद थोड़ा स्कूलिंग का भी है कि कुछ स्कूल्स में उर्दू अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई नहीं जाती और उसमें जब बच्चे जाते हैं और बड़े होते हैं उनको वैल्यू नहीं उर्दू की, उस लैंग्वेज की सिखाई जाती है। अच्छी उर्दू जो है, जिस तरह फ्रेंच के लिए बोला जाता है ना कि पॉश उस तरह की लैंग्वेज है, अच्छी उर्दू जो है वो उस तरह की लैंग्वेज है कि गाने लिखता है उर्दू पे कि इसकी ज़बान उर्दू जैसी है। अरे यार नहीं उर्दू एक इंतहाई खूबसूरत ज़बान है। मैंने जब लाइक इंडियंस को इम्प्रेस करना होता है ना तो अपनी उर्दू खालिस कर लेते हैं because it just sounds pretty, it just sounds beautiful। अच्छी वाली उर्दू ना। But let's get back to English. You actually have worked in the UK as an actor. बल्कि आपने वहाँ थिएटर किया हुआ है। You worked at Sadler's Wells, am I pronouncing that right? Yeah, Sadler's Wells. And you've done. It's a very famous theater. West End का होगा ना? Yeah, West End, yeah. West End का होगा। बहुत जबरदस्त। क्या कैरेक्टर आपने वहाँ प्ले किया और क्या किया आपने वहाँ? उष्णा उधर अंग्रेजी में ही रांझा को प्ले कर रहे थे। हाँ। What? अंग्रेजी में, yeah. And you know, I've also done a short film over there, but वो छोटे किसी प्लेटफॉर्म के लिए था, वो वहीं की फिल्म थी बहुत अरसा पहले। फिर ये जब किया तो मुझे आपको एक अजीब बात बताऊं कि मैं एक दफ़ा परफॉर्मेंस देखने गया सैडलर्स वेल्स में और मैंने वहाँ, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थिएटर, अगर आपको पता है वहाँ के थिएटर्स पुराने जब आप देखते तो पहले तो आप थिएटर देखते रह जाते हो, उसके बाद आप परफॉर्मेंस दिया। सो उधर तकरीबन 1600 लोगों से ज़्यादा लोग फिट इन होते हैं एंड इट्स ब्यूटीफुल, यू हैव टू सी दैट प्लेस इफ यू गो दिस टाइम, हैव अ लुक एट इट।
और वहाँ पे परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी होती है। तो मैं एक दिन वहाँ बैठा हुआ था और मैं सोचा यार कितना मज़ा अगर मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ और ये वो यू नो लाइक एज एन एक्टर। एंड देन आफ्टर फ्यू मंथ्स आई रिसीव अ कॉल के ऑडिशन के लिए। You manifested? I don't know what happened yet. You manifested it. I did maybe, but हम बहुत सी और चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं वो नहीं होती कभी कभार। Anyhow, so वो फिर उसका ऑडिशन का मुझे आया और ऑडिशन कर लिया। फिर जब स्क्रिप्ट आया तो वो पूरा स्क्रिप्ट अंग्रेजी में था। हमारी ट्रेनिंग एज एन एक्टर जो मेरी हुई है एज एन एक्टर वो उर्दू के स्क्रिप्ट, क्योंकि मुझे बहुत से लोग पूछते हैं आप स्क्रिप्ट याद करते हैं, तो हम लोग अब स्क्रिप्ट याद नहीं करते। We just go through it twice and then we just know what to say. You just say, yeah. Muscle memory बन गया ना, brain memory बन गया। Exactly. और चीजें याद नहीं होती, लेकिन स्क्रिप्ट के 3-3 सफ़े हमें याद हो जाते हैं। सो अंग्रेजी इंग्लिश का स्क्रिप्ट पूरा परफॉर्म करना, याद करना मेरे लिए मुश्किल था। ऑडिशन खैर दिया, वो भी काफ़ी लोगों ने दिया था, उसमें आई वाज सिलेक्टेड। एंड देन उसके बाद ये स्क्रिप्ट जब आया तो मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग उसकी करनी पड़ी अपने घर में। फिर उसकी वहाँ जाके 10-15 दिन हमारी रिहर्सल्स थी। उसी तरह हर रोज़ टाइम पे पहुंचना था। और क्या प्रोफेशनल एक्टर्स थे वहाँ के, हालांकि यंग नए एक्टर्स भी थे उसमें बहुत, लेकिन बहुत पूरा सिस्टम बड़ा प्रोफेशनल वहाँ पे, ज़बरदस्त अंदाज का। और वहाँ पे परफॉर्म करके जब मैं जब एंटर हुआ स्टेज पे पहली बार, तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि यार अभी मैंने कुछ महीने पहले सोचा था आई वांट टू परफॉर्म, आई एम परफॉर्मिंग हियर, यू नो। सो या सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस और बड़ा अच्छा। So you've done that? हाँ जी, sorry, एंड आल्सो यू नो उसमें छोटी-छोटी चीज़ें आपको बताता हूँ, बहुत एक्टर्स के लिए बड़ी मज़े की ये चीज़ें होती है जब वहाँ के लोकल न्यूज़ वाले आपको उठा रहे होते हैं और आप किसी और मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको वो इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, टेंशन दे रहे होते हैं इस तरह से आपसे वहाँ के लोकल पेपर्स। फिर वहाँ पे जो लंदन की ट्यूब्स हैं जो अंडरग्राउंड, सो अंडरग्राउंड में हम थिएटर्स के ब्रॉडवे एंड वेस्ट एंड सबके पोस्टर्स देखते हैं ना, पोस्टर्स लगे होते तो हमारे इसका भी लगा हुआ था। That must have been so So nice. I remember in a very like a sweet thing, you know, taking picture with that, you know, just keeping it as a memory. वो छोटी-छोटी चीजें फिर आपको बड़ा What a great thing for like your memory bank. हाँ, of course. That's amazing. तो वो एक अच्छा experience था। So और वो that happened after Udari, you know, I couldn't work after Udari for at least 4-6 महीने मैं काम ही नहीं कर सका उसके बाद। Why is that? I don't know, मुझे वो Headspace? उस प्ले को बहुत सीरियस ले लिया था मैंने, और मुझे लगा कि हमने इतनी अवेयरनेस कैंपेन इतना लेट क्यों किया। और मैं उसके बाद वो एक मुझे जो फीडबैक मिला मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं अच्छा लग रहा था उसके बाद। तो मैं एक इस ऐसे पॉइंट पे था करियर के कि मैं यार अब क्या करूं। और मैं I understand when a lot of this must have been a good break. It was a great thing कि उसके फौरन बाद ये मैंने किया जाके। So what's now that you've done theater in the West End, which is a dream of mine, Broadway and West End. Like I'm also manifesting it. So you've done that, you've done film, you've done Lollywood era की फिल्में जो golden era एक था. You've done this. What's next as an actor? What do you want to do? I don't know. कुछ manifest करना है अभी? कुछ भी फ्लो में जो भी आए बस कुछ अच्छा है। अच्छा मुझे कभी कभी ऐसा लगता है उष्णा कि ओवर थिंकिंग जो है ना वो किलर होती है। लाइक आप किसी भी चीज़ में ओवर थिंक करते हैं या किसी को ओवर डू करते हैं या ज़्यादा भी सोचते हैं तो वो आपको फिर सुकून नहीं मिलता किसी भी चीज़ में। सो एट सम पॉइंट या करियर के शुरू में और एक सर्टेन टाइम में यू हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट यू डूइंग एंड व्हाट्स हैपनिंग। अक्लमंदी से आप चलें तो बड़ा अच्छा रहता है। बट एक पॉइंट पे आके what I feel, ये मेरा पर्सनल वो है कि एक पॉइंट पे आके आपको रुक जाना चाहिए, इस सेंस में रुकना चाहिए, काम वाइज नहीं, सोच वाइज नहीं रुकना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। यू शुड फील कि बस जो है वो है और अच्छा होगा जो भी होगा, पॉजिटिव सोचते रहें, आप रज्जे में जिसको बोलते हैं आप वो फील करें, तो फिर आप कुछ भी आएगा और आपको छोटी चीज़ भी आएगी, आप उसको बड़ा बनाएंगे। क्योंकि ये भी बहुत कम होता है, आप अगर बहुत ही चूज कर रहे हैं कि मैंने अच्छा ही सब कुछ, प्रोडक्शन हाउस भी अच्छा, डायरेक्टर भी अच्छा, राइटर भी अच्छा, और आप बहुत से लोगों के साथ काम नहीं कर रहे, तो आपकी अच्छी चीज ही होगी ना वो, उसमें आपने क्या कमाल किया फिर, आपने क्या एडप्ट किया, आपने अपनी एक अच्छे स्क्रिप्ट की अच्छी लाइनें, आपने एवरी एक्टर वांट्स, आप कुछ खुद भी क्रिएट करें, आप एक छोटी चीज को बड़ा बनाए ना। एक बड़ा एक्टर तो वो भी होगा जो एक ऑर्डिनरी चीज को बड़ा बना देगा। सो आप मुझे अपने करियर में बहुत से बड़े एक्टर्स से ये पूछना लोगों को चाहिए या देखना चाहिए कि उन्होंने छोटी चीज को कैसे बड़ा बनाया। असल एक वो भी एक जीत है यार कि आप छोटी चीज को बड़ा, हम बड़ी चीजों में अपने आप को डालते हैं
और हम कहते हैं we've done something really big. No, but that's It's not everybody else who's done it. But that's हाँ everybody दूसरों को क्रेडिट देना फिर आप. Yeah, I agree. That's a really great way to तो एक्टर तो एक छोटी सी चीज को भी बड़ा बना सकता है. That's a great way to approach this. Ehsan, you have how many children now, mashallah? 4, mashallah. 4 already? Wow. So what kind of a father are you? Are you a strict? उस शर्त पे एक्सप्रेशन आए और you just had 2. You just had 2. I have 4. You've been multiplying, mashallah. Yeah, I love kids. How? Mashallah, mashallah. So tell me, what kind of a father are you? Are you a strict dad? You should ask them this question, but I'm not, मैं strict नहीं हूँ इतना, लेकिन generally speaking मुझे ऐसा लगता है कि because my wife also tells me कि यार तुम इनको बिगाड़ रहे हो, but वो उसको बिगाड़ना भी नहीं कहता. मुझे ऐसा लगता है कि सबकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, उसको डेवलप होने देना चाहिए. Okay. और so you're like मैं बहुत इम्पोज नहीं करता चीजें. हाँ, मुझे लगता है कि मॉरली कुछ गलत ना करें, बस फुल स्टॉप. Okay. बाकी चीजों का वहाँ पे you're the fun dad. Kind of. And yeah. Fatma is the strict one? She's also okay. लेकिन थोड़ी सी मेरी, you know how mothers are. Good cop, bad cop, and then the dads are chill, so the women have to pick up the slack. But कभी-कभी वो भी थोड़ी ऐसे होती है, मैं उसको भी बोलता हूँ कि यार तुम बहुत इसमें तुम बता नहीं उनको ये बताना है. वो कहती है अच्छा यार तुम बता दो, you know, like. अच्छा, so you guys are young, chill, relaxed. Yeah, kind of in a way. You guys also were like young couple. When you got married, you go way back. आपका तो बड़ी पुरानी love story है बचपन की. Yeah. So माशाल्लाह. हमारी शादी को it's been 16.5 years now. Oh wow. Yeah, माशाल्लाह. 17 almost. चलो आपको खुश रखे और हमेशा you. साथ रखे. On this note, we're going to take a break, and when we come back, we'll be at the table to play some games. See you soon. Welcome back to After Hours, guys. I'm here with Ehsan Khan, and we are now on the table. Okay. This is the table. Special क्या है यहाँ पे? क्या होने वाला है? You shall see. Okay. Lo and behold, Ehsan, I'm going to show you some photos from your life. Oh, okay. And आपने मुझे बताना है what is so special about those photos. Oh, अच्छा, ठीक है. Let me hide this. Okay. Look up at the screen. Who is this with you, and what was happening? क्या memory है? मैविश है यार. और हम लोग लंदन में एक ब्रांड का शूट किया हम लोगों ने. एंड दिस इज एक्चुअली अ वीडियो जिससे ये तस्वीर ली हुई है, और हम लोग हंस रहे हैं, गोइंग क्रेजी. यू नो हाउ इट हैपेंस. जब वो जिसको कहते हैं हंसी का दौरा पड़ गया आपको. यस, और वो आपके साथ बहुत पड़ता है. आई नो दिस. क्या पता नहीं. रिमेंबर हमने भी सीन्स किए ना जो पागल हो जाते थे हंस के. वी जस्ट कुडंट. So there was a situation where मैविश का सर पे ना दुपट्टा है और वो घूंघट उठा रहा हो और वो देखना उसको रोमांटिक और यूं करना है. अब वो मतलब हम 1 करोड़ बार भी कर चुके हैं, और इतना वो मतलब हम दोनों को बस we were in fits, you know, like मैं कहीं क्या हो रहा है यार. Can you do the romantic look for me? Come on यार. Do you do the hero squint to this? A little bit, हाँ. You do ना? कर तो रहा हूँ वैसे उसी वक्त से यही कर रहा हूँ. You will not change. Okay, what is the next one? What is this one? Oh. What? No way. What? ये क्या हुआ? इनसे एक बहुत मुख्तसर मुलाकात थी, बट ये मेरे बड़े पसंदीदा अदाकार हैं. हाँ, और इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इनका काम बहुत देखता हूँ, और बहुत ही खुश इखलाक हैं. हम्बल तरीन शख्सियत. मैंने सुना इनके बारे में ये कि बहुत डाउन टू अर्थ एंड बहुत, और बस ये एक बड़ी मेमोरी है इनके साथ अच्छी मुझे. बिकॉज एक अच्छी मुलाकात हुई, मुख्तसर सी, तो बड़ा अच्छा लगा. एंड आई वांटेड टू दुबई में. I wanted to write something for him. I wanted to post this picture because I was very happy to see him in the Did you post it? Of course, yeah. ये सारी मैंने Instagram से निकाली हुई तस्वीरें. Oh wow, this is such a, you're so lucky. He's such a brilliant actor. Oh what? Oh, हमारा champion. यार ये मैंने एक शो होस्ट किया था. Okay. I think 2021 में, और ये हमारे जो चैंपियन हैं, इन्होंने अपने Instagram पे ये तस्वीर तब लगाई थी, और इन्होंने बड़ी, I remember he's such a humble person, such an amazing hard-working person. Yes. और इन्होंने स्पेशली जब सेल्फी की, मतलब मेरे लिए एक बहुत ये फखर की बात है ना कि इन्होंने पिक्चर मेरे साथ, मेरी पिक्चर है इनके साथ. इन्होंने मुल्क को खुश कर दिया वैसे. थैंक यू अरशद नदीम, थैंक यू. हमें ज़रूरत थी, और वो भी 14 अगस्त से पहले. और उष्णा, मैं ये बात यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम लोग ना एक
वो कंप्लेन करने वाले लोग बन गए हैं। हर सिचुएशन में हम लोग सिर्फ दूसरे की बुराई करेंगे, शिकायत करेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे। ये बहुत होता है सोशल मीडिया पे। इस शख्स से आप इतना कुछ सीख सकते हैं। इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, इनके पास कोई स्पेशल जगह नहीं थी, इनकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं थी। क्या कहाँ से ये मतलब इन्होंने शुरू किया, और आप देखिए अल्लाह ने इनको पूरी दुनिया में इनका नाम रोशन किया, और इनकी वजह से हम लोगों का नाम रोशन हुआ। और ना सिर्फ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है ओलंपिक्स का बाय लाइक 2 मीटर्स। आप ये सोचो कि हमें इनसे क्या सीखना है, कि आपको जरूरी नहीं कि आपको किसी चीज के लिए कोई फैसिलिटी मिले या आपको कोई प्लेटफॉर्म मिले। आप शिकायतें करना छोड़ें और अपने डिटर्मिनेशन के साथ काम करें। जिन्होंने करना तो वो करके दिखाते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, काश हमने इनको ज्यादा फैसिलिटीज दी होती, क्योंकि बहुत लोग क्रेडिट ले रहे हैं इनकी सक्सेस का, लेकिन का नहीं है, वो इनकी मेहनत और अल्लाह का करम है, इनके माँ बाप का साथ है, इनके गांव वालों का। सब जानते हैं कि इन्हीं का क्रेडिट है और कोई ले भी नहीं सकता। बट ये एक लर्निंग हम सब के लिए है, मेरे लिए भी और लोगों के लिए भी, कि इनसे ये सीखें कि सिर्फ आप कंप्लेन करते रहेंगे तो आप कंप्लेनर ही बन जाएंगे। यू हैव टू go ahead, work hard, determination में कुछ करें। What an inspiration, अरशद नदीम। Always laughing, Asad। Okay, ये मुमताज साहिबा हैं जो हिंदुस्तान से आई थी लाहौर मेरे पास। ये मुमताज साहिबा जी। और वो गुलाम अली साहब हैं। अल्लाह। और दोनों मेरे लेफ्ट राइट लेजेंडरी जो आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत इंडो पाक में दुनिया भर में इनका बड़ा नाम है। और ये हम लोग इकट्ठे बैठ के गाने सुन रहे थे गुलाम अली साहब के, और वी वर शेयरिंग जोक्स। और ये जो जोक है वो ये था कि इन्होंने ना गुलाम अली साहब को ना यूँ बड़े प्यार से पकड़ के एक तस्वीर उतरवाई उनके साथ जुड़ के। तो मैंने कहा यार इतनी ज़बरदस्त से मेरे साथ भी जुड़े ना, ज़रा खिंचवाएं। तो कहती नहीं तुम्हारे साथ नहीं मैं जुड़ी। तो ये वो जोक हमारा है। तो बड़ा मजे का एक इनके साथ अच्छा टाइम गुजरा लाहौर में। वाह, हाउ ब्यूटीफुल। क्या ज़माना था जब बॉर्डर्स खुले थे, आर्ट यहाँ से वहाँ आ सकती थी। आई थिंक आर्टिस्ट का आपस में बड़ा एक प्यार है, बट मुझे लगता है कि जो भी है वो आर्ट में तो एक रहता है, एक दूसरे का शेयरिंग रहती है, रहना चाहिए। इट्स जस्ट सैड कि अब काफी चीजें थोड़ी लिमिट हो गई हैं। अल्लाह करे कि फिर से खुले, बिकॉज़ वी ग्रोन अप टू दीस पीपल, वी लव देम एंड दे लव आवर ड्रामास। हां, बहुत पसंद करते हैं, बिल्कुल, बहुत ज्यादा के लोगों से। Who's whispering in your ear like this? What is going on? Why are women always whispering and laughing around you? सोनम बाजवा ये क्या विस्परिंग कर रही है वो मुझे बिल्कुल याद नहीं। आई थिंक दिस वाज पार्ट ऑफ द You look shot. I look what? You look very nice. अच्छा, नहीं थैंक यू, बट मैं समझ, मुझे ये लगता है कि पार्ट ऑफ द शॉट है जो हम कर रहे थे। अच्छा। और वो कुछ ऐसा कोई राज की बात काम में नहीं कह रही। शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर, शी इज़ अ ब्रिलियंट ह्यूमन, बहुत हम्बल, और इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई फील fortunate that I've mashallah. They're also fortunate, but mashallah. By the way, it was very humbling and बहुत एक अच्छा लगा जब इन्होंने मेरे सब काम देखे हुए थे, इन्होंने और दूसरे एक्टर्स का काम देखा हुआ था, हमारे प्लेस रेगुलरली फॉलो करते, सो बहुत अच्छी फीलिंग हुई कि उन्होंने मिलते ही हमारे प्लेस की बात की। Art has no boundaries. Music and art, there's no boundaries. बिल्कुल ऐसा। I'm going to play a game with you. Another game? Okay. It's not going to be a mind game. ये हो गया। अच्छा ठीक है। Good to know about your memories. अच्छा, mind game नहीं खेलनी, फिर क्या मजा है? Do you play mind games with people? I don't, but I like it when people play it with me. अच्छा, you'd be the first. Not really. I'm just saying it. I'm just saying it. You're just saying it. ऐसे बात बुराई बात कर रहा हूँ यार। I know, I'm joking. Yeah. I'm joking. अच्छा, so we've got it's called word sneak. Okay. So मैं एक scenario आपको दूंगी, और उस scenario में हमने बात करनी है आपस में, हम इम्प्रोव कर रहे हैं। अच्छा, ठीक और है। आपके पास 5 वर्ड्स होंगे और एक वक्त में आप एक वर्ड उठा सकते हैं, एंड यू इन कॉन्वर्सेशन हैव टू यूज दैट वर्ड व्हाइल कन्वर्सिंग। ठीक है? सो I'll give you your 5 words. These are your 5 words. You can't look at all of them at once. Okay. 3, 4, 5. These are your 5 words. 10 words. 6, 7, 8, 9, 10. We've moved it to 10 words, ladies and gentlemen. ये 10 लफ्ज मेरे हैं। ये 10 लफ्ज मुझे ये यूज करने हैं आपसे कॉन्वर्सेशन करते हुए। 1, 2, G, 3, 4, and let me find out what our scenario is. 7. What is our scenario? Nah. So the scenario is, Hassan Khan, okay, we're in a parent-teacher meeting, and you can be the parent because you have children, and I'll be the teacher, and हम बात करेंगे आपके बच्चे पे। अब हम असली बात एहसन के असली बच्चे पे नहीं कर रहे। अब उष्णा को देखते हुए
बात उष्णा के बारे में तो ज्यादा हो सकती है। तो okay, so I'll start. हाँ, क्या लफ्ज़ है? You'll just find out. I can't tell you. You have to use it. You can't tell me either. So अलग-अलग लफ्ज़ हैं हमारे। जी जी। So एहसन, आप आए हैं आज, बहुत शुक्रिया। आपकी बेटी मेहरुनिसा पे बात करनी है। Can't use his real daughter's name. मेहरुनिसा जो है वो बहुत एक पटाखा है और वो स्टडीज़ में भी ध्यान नहीं दे रही हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि घर में कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिस वजह से वो थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड हैं और पटाखा है। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आप इतनी कंसर्न्ड हैं मेरे बारे में और मेरी बेटी के बारे में। आपकी बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है माशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि जो शरारती बच्चे होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है और मैं उनको खुल के शरारतें करने देता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई तो हो ही जाएगी और होनी चाहिए, आप सही कह रही हैं, लेकिन थोड़ी सी शरारतें भी बच्चों को, किड्स आर किड्स, यू नो, दे विल बी किड्स। आपकी बेटी ने एक लड़के की पैंट जला दी and I feel like जी लाइटर लेके, so I feel like children puppet what their parents do. आपने घर पे किसी की पैंट जलाई है? हरगिज़ नहीं, लेकिन ज़रूर इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी करे तो इन रिटर्न ज़रूर कर देना। बल्कि मैंने तो ये कहा था कि उसको मिर्चों से भरी नूडल्स खिलाना अगर कोई तुम्हें तंग करे, लेकिन उससे पता नहीं पैंट कैसे जला दी, तो नूडल्स वाज द यस, नूडल्स खिला दे। हाँ, मैंने कहा मिर्चें डाल के बहुत सारी। उसने क्या किया कि उसने एक मार्शमेलो लिया, हाँ, और उसकी पैंट्स के साथ स्मोर्स बनाए, मार्शमेलो को पैंट्स पे मेल्ट कर दिया और उसे खाने की कोशिश की। ये खाने की या खिलाने की? हाँ, खाने की। अच्छा, क्योंकि जब उसे भूख लगती है तो उसने कहा कि उसको तो पापड़ी चाट पसंद है। वो तो कभी मार्शमेलो तो देखा भी नहीं उसने, उसको पसंद नहीं है, सो इसलिए पापड़ी चाट उसको पसंद है, उसकी फेवरेट है। लेकिन मैं पूछ लूंगा उससे अगर मार्शमेलोज भी उसको चाहिए होंगे तो। लेकिन इसने ऐसा क्यों किया यार? उसने फिर कुछ स्नेल्स पकड़े गार्डन से और उनको भी रोस्ट किया और जबरदस्ती बच्चों को खिलाने की कोशिश की। ये हर चीज घर में क्या होता है सिनहान? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो नेशनल ज्योग्राफिक और एनिमल प्लैनेट बहुत देखती है, तो मे बी शी इज इंस्पायर्ड बाय लॉट ऑफ एनिमल्स बिकॉज़ हर फेवरेट एनिमल इज कैंगरू। इज इट? कैंगरू। और वो जब कैंगरू किसी से लड़ता है, आपने कभी देखा जब कैंगरू बॉक्सिंग करता है और मारता है किसी को, तो बहुत डेंजरस होता है। तो मैंने ये बच्चों को सब कहा हुआ कि अगर कोई तंग करे तो कैंगरू की तरह जरा सीधे होके लगा देना। वो एक बड़ी पेक्यूलियर हरकत कर रही थी कि वो एक पोटैटो सैक में जंप करके हॉप अराउंड कर रही थी और पंचेस मार रही थी दूसरे बच्चों को। गुड। ऐसे ना आपने क्या तरबियत की अपने बच्चों की? जो तंग करे उसको, मेरे बच्चों को बोला वापस, यानी कोई हरासमेंट, कोई बुलिंग लेनी नहीं है। और वेट अ मिनट, उस बच्चे का नाम पप्पू तो नहीं है? प्यार से पप्पू कहते हैं उस बच्चे को? जी, उस बच्चे का नाम पप्पू है। पप्पू बेटा, आ रहा हूँ मैं भी तुझे पकड़ने। रुक जा जरा। पप्पू ने क्या किया? यही तो किया, तंग किया होगा ना। तंग किया? हाँ, ऑफ कोर्स। क्योंकि वो कह रही थी कि पप्पू, मैं तुम्हारी गर्दन काट के घर ले जाके उसकी चटनी बनाऊंगी। वो गर्दन काटे पे आ गई। ये इतना ज्यादा हो गया। ऐसा मैं बिल्कुल I don't know why I went so morbid. I'm really dark. नहीं, ऐसा तो पता नहीं, मैं मुझे पूछना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। तो बल्कि वो तो इतनी स्वीट बच्ची, उसने तो जाके पूरे स्कूल, पूरे क्लास में सब टीचर्स को गुलाब जामुन बांटे। और वो तो मुझे बड़ा, उसने कहा कि बाबा मैंने तो सबको गुलाब जामुन खिलाने हैं और डिजर्ट्स और दूसरी तरह की चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। गुलाब जामुन वो खिला रही थी और साथ साथ पंचेस मार रही थी और कह रही थी कि मैं तुम्हारी शक्ल गुलाबी कर दूंगी। नहीं, वो नहीं, मुझे याद आया कि हाँ, वो बेचारी पंचेस नहीं मार सकती, इतना ज्यादा वो नहीं करती है, अग्रेसिव नहीं है, ज्यादा पिलो उठाती है अपना और पिलो मार सकती है लोगों को, जैसे बच्चे मारते हैं आपस में पिलो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। You're confusing her with somebody else. Maybe somebody else was doing this and she can't do this, but you know, I'll just start tickling you if अगर तुम ज्यादा मतलब उल्टी सीधी बातें की हो, I'll start tickle शुरू कर दूंगा, फिर हंसी नहीं होती। Oh, it's a word. I was like, what the hell is that? Yeah, you're ticklish. You don't lie. Yeah, you just दूर से भी you करो. You don't lie. I'm not ticklish at all. You know that? At all. Really? I'm really ticklish. Yeah, I know you are. So it's okay. I am. This is a known thing about me. I am. फिर उन्होंने गुड़िया को फेंक के यूं बंदर वाली हरकतें करने लग गए। And then she said, I'm going to fling feces at this boy, but she couldn't poop. So, because monkeys fling feces. भाई, अब तो मैं ढोल बजा के ऐलान कराऊंगा कि ये स्कूल कौन सा, ये बच्चा कौन सा, ये टीचर कौन है।
ढोल बजेगा अब तो. But you know, Esther, now that I think about it, I don't think that was your daughter. I think it was just someone from an insane asylum. Definitely. I'm so sorry. That's okay. She had green eyes, so I assumed she was your daughter. You just assumed. She was. I am so sorry, Essence children. This was a game and this made-up scenario. You have wonderful children and a wonderful wife who's raised them beautifully. We'll get back to you, Ishta. We'll get back to you. We'll call you up. What were you up to? I was just imagining a child acting like a monkey. We do a bit of toilet humor. On this note, we're going to take a short break. We'll be right back with Ehsan Khan on After Hours. हर वक्त की फिक्र रहती है दूसरे को एंटरटेन कैसे करना है कोई आ रहा है उसको चिल आउट बातें you can't you be yourself and just be silent just and be just silent chill. You can be bored also those are real friendships humans, yeah. Those friendships go beyond showbiz. हाँ. And we're back gupshupping here on After Hours with Ehsan Khan. Ehsan, what do you do outside of work? What are your hobbies? यार horse riding, I love horse riding. Really? Swimming, हाँ. Swimming. Are you a good swimmer? Oh yes, of course. चलो मेरे साथ किसी competition हो जाए. और horse riding में तो We've done that. I bet nobody. We've done that once. Nobody else in Pakistan इतनी कोई ऐसी मैं सोचता हूँ कौन सा. Let me think. कोई और एक्टर नहीं करता. ऐसी हो सकती. ये शर्त लगी सबके साथ. Challenge. हाँ. It was some farmhouse. Yeah, we did some campaign I think. हाँ. या कुछ था. So वो मैं horse riding के लिए जाता हूँ regularly. Okay. I mean regularly से मतलब कि हर रोज हर दूसरे दिन नहीं लेकिन on and off और swimming के लिए. In fact मेरा अपना वो swimming पे क्योंकि बाहर कहीं जाता था तो कभी-कभी वो आवर्स मेरी मर्जी के मेरा कभी रात को 12 बजे स्विमिंग करने का दिल करता है 2 बजे मेरे पास 2-3 जगहों पे जाता हूँ बट नाउ आई एम बिल्डिंग मैं अपना बिल्ड कर रहा हूँ एक पूल बना रहा हूँ एक जगह पे अपने लिए कि यार रात को 4 बजे भी दिल किया तो Are you doing paddle shuttle जो सारे कर रहे हैं आजकल? No, not that. उसमें नहीं, but you're swimming, that's good. हाँ, do you diet and do you work out and वो सब लगता है मुझे देख के बिल्कुल I love food. You know that. You're a Lahori, you love food. I know this. और खाने में डाइट नहीं होती सिर्फ इतना होता है कि लाइक आप बकवास आई मीन फजूलियात ना करें आप अपने साथ. क्या खाते हैं आप? यानी आप ऑयल्स ये जो हम सीड ऑयल्स हैं ये ना खाएं आप. बेसिकली शुगर नहीं लें आप. हाँ आप अच्छी चीज़ें खाएं. और घर में क्या बनता है लाइक जो बड़ा पसंद हो? सब कुछ खाता हूँ सब कुछ लेकिन एक ख़ास वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फॉलो करते हैं. रिस्ट्रिक्शंस है. मील प्लान नहीं आता. नहीं मील प्लान नहीं लेकिन सब कुछ बनता है पर उसमें ऑयल नहीं होगा ये वाला. अच्छा. उसमें नमक नहीं होगा ये वाला. उसमें कौन सा नमक डलता है? पिंक सॉल्ट जो हाँ हमारा वो पिंक खाने में और ऑयल्स नहीं डलते. वी यूजुअली यूज ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल या देसी घी इस तरह की चीजें यूज करते हैं. वही हमारा एक परमानेंट खाना घर में बनता है. सो इट्स लाइक काइंड ऑफ हेल्दी स्टफ. वो कुछ बना होगा अगर मैं घर का खाना भी खाता हूँ जनरली कुछ स्पेशल ना बनवाऊँ तो वो मोस्टली इट्स healthy. तो थोड़ी ऐसी regime follow करता हूँ. And one thing I've noticed. That's why you're happy. Yeah. And one thing I've noticed. अब जो late night खाते हैं ना जी सब लोग जो पूछते हैं ना कि यार weight gain मेरा weight तब बढ़ता है जब मैं late खाता हूँ चाहे वो मेरा diet food भी हो. तो फिर do you eat on set before pack up? I try and finish. I try कि मैं 7-8 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊं. कोशिश तो होती है. That is which keeps me नॉर्मल एक शेप में रखता है यानी एक वेट बढ़ने नहीं देता जितना उसको फिक्स करता है. लेकिन अगर मैं लेट खा रहा हूँ बिंजिंग कर रहा हूँ तो फिर फ्लक्चुएट करता है. सो ये सब लोगों के लिए जो लोग खाते भी कम है और कहते हैं यार वजन बढ़ता है अगर आप बहुत एक्सरसाइज नहीं कर सकते लेट खाना छोड़ दें. I agree. रात को खाना And it's really difficult. हमारी फील्ड में मुश्किल है ये चीज़ क्योंकि जब खाने का सेट पे टाइम होता है मुसद्दिक तो कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो नहीं खाने देते कि ये शॉट करवा लो. यार हब्स में मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं 8 बजे खाऊं. मेरा एक डायरेक्टर था मुसद्दिक मलिक नाम से जो ये शो भी डायरेक्ट कर रहे हैं. really? लेकिन अल्लाह ने एक सिस्टम भी ऐसा बनाया ना मुश्ना कि आप जो रात का शाम का सिस्टम है ना कि आप शाम जब होती है रात होती है सोने का एक सिलसिला शुरू होता है हर चीज़ you know like calm down हो जाती है. Are you on your routine a lot? Yes, well I try. We all try. We all struggle and try ना जिंदगी में perfection तो किसी के पास भी नहीं है यार. लेकिन ये कि शाम और रात टाइम ऐसा कि काम और हर चीज़ आपका पेट भी बेचारा जो है ना वो भी माफ़ी मांगता है कि यार 12 बजे अब मैं कहाँ से काम शुरू करूँगा. It's not the time. सुबह खाएं जो मर्जी enjoy करें. अच्छा so tell me another thing. ऐसा आज हमने अपने ऑडियंस से बात की सफाई की आपके आने से पहले भी. How important is cleanliness to you? Mental well-being के लिए
जब हम सेट पे जाते हैं और वहाँ जब कचरा कई दफ़ा पड़ा होता है कुछ इलाकों में या सेट के ऊपर भी और उस तरह की इन्वायरमेंट होती है, उससे मुझे लगता है कि काम इफेक्ट होता है. I feel like it really brings a damper on my mood. What is your take on this? And are you very organized and saaf suthra at home? Do you keep things clean? I've been to your house, so I know कि it's very clean. Very. ये दो different चीजें, hygiene जो personal hygiene. Personal hygiene तो खैर. It's obviously very important. और अगर चीज बिखरी हुई हो, वो भी बहुत अच्छी लगती है. लेकिन सफाई सबको मालूम है कि निस्फ ईमान कहा जाता है सफाई को. सो आई बिलीव कि हम लोगों की तो ट्रेनिंग ही सफाई से शुरू होती है, चाहे वो पर्सनल हाइजीन हो या आपके इर्द गिर्द का गंद हो. लेकिन अफसोस होता है कि उतना ही ज़्यादा गंद हमें देखने को मिलता है हर जगह पे. सो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं भी ट्रेनिंग में इशू है घर से, कि अगर आप सफाई पसंद नहीं है, बहुत ज़रूरी है. और सफाई को जब निस्फ ईमान कहा गया है तो आप सोचें कि हर चीज का आगाज सफाई से होना चाहिए. बिल्कुल, जो कि नहीं होता. का आगाज सफाई से होता है. हर चीज का, आपकी जाती पर्सनल, आपकी अपने वार्डरोब, आपका अपनी बॉडी की बात कर लें, आप अपने जिस एरिया पे आप बैठे हैं, जहाँ रहते हैं, जिस इलाके में आप हैं, जिस शहर में आप हैं, हर जगह आपके काम की स्पेस, सफाई तो बहुत ज़रूरी है. और अब तो एक क्लटर जो है वो तो एक बड़ा ये एक नॉन फैक्ट है कि क्लटर जो है आपके तरक्की में वो रुकावट है क्लटर. बिकॉज आपको सही से सोचने नहीं देता. आपका जहन वेल बीइंग के लिए, जैसे आपने कहा कि सफाई और क्लीनलीनेस और ऑर्गेनाइज होना, ये आपकी तरक्की में चीजें आसानी पैदा करती है. कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी कि हम मुल्क को भी साफ रखें, बहुत जरूरी जो है. आराम से लोग गाड़ी के शीशे से बाहर चीजें फेंक देते हैं या कचरा सड़क के एंड पे डंप होता है, इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी. और अगर किसी से हो गया तो इट्स ओके, वो पास था. और हमने भी कहीं पे बहुत गलतियां की होगी जिंदगी में, लेकिन हमेशा अपने आप को इवॉल्व, जी बिल्कुल, कुछ सीखें. अच्छा, द शोज नेम इज आफ्टर आवर्स, राइट? आफ्टर आवर्स में थोड़ी एक स्पूकी वाइब भी हम लाते हैं. सो मैं अपने गेस्ट से कहती हूँ कि मुझे एक हॉरर स्टोरी बताएं, कोई एक किस्सा. मैंने बड़े एक्टर्स ने शूट्स पे हुए किस्से मुझे सुनाए हुए, लेकिन आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा किस्सा था जो थोड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला हो? नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ अपनी पर्सनली यादें, हॉन्टेड सेट पे काम नहीं किया? नहीं वाकई नहीं किया, लेकिन बचपन में कोई ऐसी चीजों से आप डर जाते हैं. बट मुझे आई रिमेंबर कॉन्जरिंग 2 जो है ना, या वो अगर आप फिल्म देखो तो वो ट्रू स्टोरी पे बनी हुई है. एंड इट्स एक्चुअली really spooky, Ushna. You've been to that place? I've been to that place. Oh gosh. ये 1977 की स्टोरी है ये. और I don't know if you guys have a picture of that place, that house, please. We'll put a picture up. Put a picture, You're looking at the picture right now. So उधर वो लोग ये उनकी स्टोरी ऐसे है कि वहाँ पे वो कहते थे something's following us all the time, हमें कुछ फॉलो करता है, इस घर में कुछ है और कुछ दिखाई देता है और अजीब अजीब चीजें, बहुत ज्यादा weird चीजें होती थी वहाँ पे. अगर आप कभी स्टोरी को फॉलो करें, it's a true story. Oh goodness. And then एंड में ये पता चला कि जो द मदर जो थी उसके साथ कोई एंटिटी थी एंड द मदर वाज ट्राइंग टू किल द चाइल्ड, रियल डॉटर. ये बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग कहानी है. और यू विजिट दैट प्लेस, इट्स I'm good. Actually, I love spooky places. It's very scary. I think I will. I'll read you a horror story जो हमारे एक viewer ने submit की. अच्छा. This is, और मुझे पढ़नी पड़ी है क्योंकि किसी ने भेजी भी है और काफ़ी creepy है. ये 2010 का एक वाक़या है जो न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी सेरा लॉरेंस कॉलेज में हुआ था. उधर कोई 17-18 साल के बच्चे ने, लड़के ने, जब यूनिवर्सिटी शुरू किया उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक साथ एक ही अपार्टमेंट में रहेंगे. अच्छा, 2 लड़के जो इन्होंने डिसाइड किया कि हम रूममेट्स होंगे. उनमें से एक बच्ची थी जिसके अब्बू जेल में से अभी रिलीज हुए थे. He had no place to stay after being released from jail, so he weirdly started living with his daughter and her roommates. Which ये concept बाहर लोग रहते हैं roommates के साथ, it's very normal college के दिनों में. तो उसके अब्बा जो भी जेल से निकले वो भी आके रहने लगे. Okay, and they all just started college. अजीब बात ये है कि उस आदमी की जो बेटी थी, she moved out of the apartment, but that creepy guy continued to live there with the roommates. Okay. और आहिस्ता आहिस्ता उसने सारे बच्चों को बहुत साइकोलॉजिकली हिप्नोटाइज किया. ये जो सारे बच्चे थे इन सब की बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स थी. तो उस आदमी ने सबसे पहले इन बच्चों को अपनी फैमिली से दूर किया और उन्हें कहने लगा कि वही उन सब की फैमिली है. And then he formed this weird cult with them,
सबसे पहले उसने इन सारे बच्चों को साइकोलॉजिकली कन्विंस करके उनसे बहुत बहुत पैसे लिए, फिर वो उन्हें अब्यूज और टॉर्चर करने लग गया। He used to psychologically torment them and gaslight them so much that he convinced them that they did things that they never ever did. Like gaslight करके he convinced them कि आपने ऐसा किया। इस तरह का यहाँ भी बहुत होता है वैसे। They were completely under his spell. वो बच्चे कभी किसी से बात नहीं करते थे। That creepy man convinced them that they were worthless and that they owed him everything. Oh my everything. ये तो true story निकला है। ये कुछ साल चलता रहा और finally वो बंदा पकड़ा गया। But even today, 14 years later, the victims haven't been able to come out of that trauma. They still don't know what was true and what wasn't. All the things that they never did, but that man convinced them that they did do, even now, a part of them thinks that maybe they did those things. Oh God. The story is so scary and that man is so creepy that there's even a documentary about this on Hulu. Oh my goodness, yeah. क्या उसने क्या किया होगा? He must have would you let anyone hypnotize you? Like I wouldn't. I don't know, I've never. वो लोग करते हैं ना कि किसी ने कोई बुरी आदत छोड़नी हो, स्मोकिंग छोड़नी हो, तो वो हिप्नोटिस्ट के पास जाते हैं, बट वो आपको एक ट्रांस स्टेट में लाते हैं, जैसे वो फिल्म नहीं है गेट आउट। I would never let anyone touch my brain. Like I'm sorry. But then मुझे लगता है जो बच्चे young kids, आपने कहा 17-18 साल की बात की, तो बहुत vulnerable एज होती है, और स्पेशली अगर घर में ऑलरेडी इश्यूज हो जैसे इसमें तो उनको जल्दी मैनिपुलेट करना बहुत इजी हो जाता है। और ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं सोशियोपैथ यही तो करते हैं। यस, आधे मर्द यहाँ के। अच्छा, I didn't say that. अच्छा। There's too many cases of too many women being manipulated. या बहुत सारे लोग नार्सिसिस्ट, even women, होता है, और पूरी दुनिया में होता है। बस हमारे यहाँ पे ये होता है कि आपको अगर लगा कि यहाँ पे ज्यादा सुनाई देता है, तो बाहर के मुल्कों में डिवोर्सेस रेट ज़्यादा है, और उसकी वजह भी है कि वो बहुत जल्दी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ पे ख़वातीन हमारी जो उनको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर होता है कि घर खराब नहीं करना। तो ड्रामा में भी तो ये सिखाते हैं। उस चीज़ में फिर कॉम्प्रोमाइज़ आदमी भी करते हैं, बहुत सारे। मैं आदमियों को भी ऐसे जानता हूँ जो बहुत अनहैप्पी अपने रिलेशनशिप्स में, लेकिन वो बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन ख़वातीन ज़्यादा रेशो है। That is sad. Which is sad. Asin, your Urdu is really good, right? अच्छा। अच्छा, मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे शो में एक गेम है। अच्छा। कॉल उर्दू खेल। अच्छा, उर्दू खेल। तो उर्दू खेल में मैं आपको एक सिनेरियो दूंगी। ठीक है। और उसमें आपने मुझसे बात करनी है, मैं आपसे सवाल भी पूछूंगी, और सिर्फ उर्दू में बात करनी है। मतलब आप टीवी भी नहीं यूज कर सकते वर्ड, आपको टीवी को डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है। ठीक है, आर यू रेडी? सो मैं आपसे पूछूंगी कि हाल ही में आपको अपना कोई ख्वाब याद है जो आपने देखा हो, और उसको जरा समझाएं मुझे कि वो कैसा ख्वाब था। तफसील से बताइए। बिल्कुल उर्दू में, खालिस उर्दू में। ख्वाब, अच्छा। Why do you know about my ख्वाब? English, you lost. Oh sorry, I lost. अच्छा चले, मैं कुछ और। अच्छा नहीं, ख्वाब की वैसे अगर आप I think हर कोई ख्वाब देखता है। एक तो ख्वाब देखना होता है कि सोचना कि मैं फ्यूचर का ख्वाब देख रहा हूँ। एक होता है ड्रीम, जो ख्वाब आप उसकी बात कर रही हैं। तो वो जो मैं जिस ख्वाब, अगर मुझे कोई याद रह गए हैं कुछ ख्वाब अपने, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे हैं जो रूहानियत के ख्वाब हैं। तो वो जो ख्वाब है वो मजहबी हो सकते हैं, रूहानी हैं, और उनके बारे में तफसील से यहाँ पे बताना थोड़ा मुश्किल होता है। I mean, शायद मैं शेयर ना करना चाहूँ। But tell us anyway. You lost the game, but tell us anyway. I lost the game, sorry. हाँ, नहीं बोलनी चाहिए थी। शेर को क्या कहते हैं उर्दू में? कौन सा वाला शेर? बब्बर शेर? शेर। नहीं, बताना नहीं चाहता, ऐसे बोलता कि आपको किसी को बताना नहीं चाहता, यही बोल सकते हैं, किसी को बताना नहीं चाह रहा था। तो but anyhow, तो वो तो I've lost। हाँ, तो ड्रीम्स की जब हम बात करते हैं, तो मुझे जो याद रह गए ना बहुत से ओशान ख्वाब, वो बड़े स्पिरिचुअल ख्वाब है मेरे, और वो मेरी बड़ी पर्सनल एक चीज़ है। तो मुझसे एक दो और शोज़ में लोगों ने पूछा ख्वाब शेयर करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो इतने करीब है मेरे, वो बहुत रिलीजियस है, और मैं लोगों को भी बताना चाहूँगा। बस मुझे ये बताएं कि शेर को उर्दू में क्या कहते हैं? दूसरे, मुश्किल सवाल है। शेर को क्या कहते हैं उर्दू? शेर बांटना नहीं, लेकिन बात बांटते नहीं है ना। ऊंची बोल दे भाई। वो सोचा मुझे। चले ऑन दैट नोट। एक तो शेयर करना, बांटना भी होता है,
हाँ, वो डिफरेंट शेयर करना है, लेकिन किसी को बताना भी एक मैं जब यहाँ से अभी भी मैं बहुत करती हूँ कि जहन में इंग्लिश से कभी आप कोई चीज़ ट्रांसलेट करते हैं तो मैं कहूँगी कि मैं लिपस्टिक पहन रही हूँ या मैं परफ्यूम पहन रही हूँ। अच्छा, लगाना परफ्यूम लगाते हैं, but you say I'm wearing lipstick, I'm wearing perfume, so वो चीजें हाँ नहीं, मैं बहुत सी चीजें अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं करता, लेकिन जनरली स्पीकिंग हमारी लैंग्वेज ऐसी हो गई है कि हम बीच में अंग्रेजी के लफ्ज़ कितनी सैड बात है। हाँ, कितनी हाँ, होना तो नहीं चाहिए। हाँ, परफेक्शन ढूंढनी चाहिए इसमें भी। खैर एनी हाउ, मैंने तो बहुत इम्प्रूव किया, उर्दू बहुत सीखी, आपने भी बहुत सीखी, हमें और सीखनी चाहिए। हमें बिल्कुल और सीखनी चाहिए। ऑन दैट नोट हम थोड़ी सी बात करते हैं अपने ऑडियंस के साथ और फिर हम अनफॉर्चुनेटली आपको खुद हाफिज़ कहते हैं। We've had such a great chat, Asin. It was so nice having you here. Guys, हम किसी भी इंसान के नाम, स्टेटस या स्टाइलिंग से उसके बारे में इतना नहीं जान पाते जितना हम उसके एक्शन से जान पाते हैं। I look at Asin and his career and his actions. और मैं ये सोचती हूँ कि he didn't back away from doing the right thing, even when it was sometimes difficult. His actions tell me that he deserves all the love जो audience से इनको मिलता है, क्योंकि he doesn't just act for acting, but he acts to make a difference. हमारे एक्शंस हमारे बारे में क्या कहते हैं? मैं फॉर एग्जांपल एक बड़ी सी गाड़ी में बैठी हुई हूँ, डिज़ाइनर कपड़े पहने हुए हैं, डिज़ाइनर हैंडबैग पकड़ा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लग रही हूँ, लेकिन मैं चलती गाड़ी में विंडो से कचरा बाहर फेंकती हूँ। तो ये एक्शन मेरे बारे में क्या कहता है? ये एक्शन आपके बारे में क्या कहता है? नेक्स्ट टाइम अगर आप लेजीनेस में ऐसे कचरा फेंकना चाहें तो ज़रा सोचिए कि ये एक्शन आपके बारे में क्या कहता है। सो माई इनविजिबल ऑडियंस, आई होप कि आप मेरे साथ एग्री करते हो। इनविजिबल ऑडियंस तो एग्री करती है, लेकिन मेरी फेवरेट जो घर पे ऑडियंस बैठी हुई है, आई होप दे एग्री विद मी टू। एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच Asin. I'm so happy you came on my show. It's a pleasure, Ushna. God bless you. It's a pleasure, and all the luck to you. Thank you. You're a wonderful person and a wonderful actor, and you're doing great as a host. And I wish you all the luck आपके future के लिए. Thank you. And coming from you, as brilliant as you are, this I'm means humble. the world. Thank you. Thank you. On that note, guys, I'll see you next time here on After Hours.